Hello friends, I welcome you all to Vamsi's Golden Series for IAS. If you can believe, you can start. But if you can understand, you can achieve. You know that we have divided reasoning into different topics like cubes and dice, elimination, comparison, cube, directions, figure blanks, arrangements, variables, blood relations, understanding based, language based, miscellaneous, images, graphs, coding and decoding, letter series and number series. This video is about comparison. This is very easy topic and very important topic. You do not require any prior knowledge to answer these questions. So I directly start with an example. Generally from this topic, three types of questions will appear in different exams. First, I will take an example. A is taller than B but shorter than C. Who among A, B, C is the tallest? Very, very simple question. Even without using pen, just by understanding the statement, you can say that. But if you want to go by standard way, because this is very easy, tomorrow, the question could be little difficult. So A is taller than B. So I write A above B. ये मेरा पर्सनल चॉइस है. ऊपर लिख रहा हूं इसका मतलब है जो टॉल या हेवियर या रिच ज्यादा है मैं ऊपर लिख रहा हूं उनको, जो छोटा या कम है मैं नीचे लिख रहा हूं. आप ज्यादा को नीचे भी लिख सकते हैं, वे कंप्लीटली आपका चॉइस. नाउ ए टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी. इसका मतलब है ये बी से टॉल है तो मैं ए को बी से ऊपर लिखा हूं, बट शॉर्टर देन सी दैट मीन सी और ऊपर रहेगा. Now the question is, who among A, B, C is the tallest? So clear, C is the tallest. Very simple question. This is the first type. आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ही easy question दिखाया, but you don't believe me, इतना ही easy questions आपको एग्जाम में भी आता है. If you want, you can check this example. It was asked in 2012. Geeta is prettier than Sita but not as pretty as Rita. What is this question? There is no question in this at all. Geeta is prettier than Sita. So Geeta को मैं सीता से ऊपर लिखूंगा. Geeta is above Sita, but not as pretty as Rita. So Rita और ऊपर है. Simple. Now you see then. First option. Sita is not as pretty as Geeta. देख लीजिए. Sita is not as pretty as Geeta. Correct? Because Sita is not as pretty as Geeta. Because Sita less pretty. So simple, that is the answer. Even no need to check the other options. Such simple questions come in the exam. You have to identify. Very silly question. Hope you all understand this. Let me take another example from 2012 paper itself. Examine the following statements. Rama scored more than Rani. So I take Rama above Rani. So because Rama scored more than Rani. You don't do this like Rama without any gap Rani. It doesn't mean that. More means it could be anywhere more. Maybe there could be somebody else in between also. Are you getting my representation? So Rama को रानी से ऊपर लिखा, बीच में कोई और भी हो सकता है. Second point, second statement. Rani scored less than Ratna. Rani scored less than Ratna. इसका मतलब है रत्ना को रानी से ज्यादा होना चाहिए. बट रानी से ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा? रानी से ज्यादा का मतलब यहां भी होगा तो ज्यादा है, यहां भी होगा तो ज्यादा है, कहीं भी हो सकता है. सो वी डू नॉट नो. सो व्हाट आई डू, आई टेक ए लाइन एंड रत्ना इस लाइन से ऊपर है. कहीं भी कितना ऊपर मुझे नहीं बता, इस लाइन से ऊपर है. हो सकता है यहां जस्ट अबो रानी यहां हो जाए या यहां हो जाए, कहीं भी है. होप यू आर ऑल गेटिंग. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई डोंट रिमेंबर एनी फॉर्मूला और आई एम नॉट फॉलोइंग एनी prior information or anything. Just whatever is written in the question, I'm just following. I'm just putting in my own representation. I automatically get the answer. Next, third, Ratna scored more than Rama. So now ये बताया Ratna scored more than Rama. That means Ratna Rama से भी ज्यादा है और ऊपर चले जाएगी.
वे खुद बताएगा। यू सी, आपका एग्जाम बहुत इजी है इसलिए इमीडिएटली बताया। कुछ एग्जाम्स में छुपा के 2-3 स्टेटमेंट्स के बाद बताएगा, लेकिन तो कभी बताएगा। आपको जस्ट पेशेंस रखना है, आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? नो नीड टू थिंक आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप ये मत सोचिए आप नहीं आंसर कर पाएंगे। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है इन क्वेश्चंस आंसर करने में। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेटमेंट, पद्मा स्कोर्ड मोर देन रमा बट लेस देन रत्ना। मोर देन रमा मींस रमा से ऊपर रहेगी एंड रत्ना से कम रहेगी, नीचे रहेगी, सो बीच में पद्मा रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट नाउ हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, ऑब्वियसली रत्ना। होप यू आर गेटिंग मी। अदरवाइज यू सी, इतना आसान है आपके एग्जाम, अगर इतना भी आप नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रमा स्कोर्ड मोर देन रानी। अगर रमा रानी से ज्यादा स्कोर करता है, हाईएस्ट रमा, रानी में रानी तो हो नहीं सकते बिकॉज रानी से ज्यादा रमा है, तो रानी इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, रानी स्कोर्ड लेस देन रत्ना। रानी रत्ना से लेस स्कोर करता है, इसका मतलब रानी कैन नॉट बी द हाईएस्ट, ऑलरेडी एलिमिनेटेड। रत्ना स्कोर्ड मोर देन रमा, दैट मींस रमा कैन नॉट बी द हाईएस्ट। पद्मा स्कोर्ड मोर देन रमा बट लेस देन रत्ना, दैट मींस पद्मा कैन नॉट बी द हाईएस्ट बिकॉज लेस देन रत्ना, सो ऑब्वियसली बचा रत्ना। आपको इतना आसान क्वेश्चंस एग्जाम में दे रहे हैं, यू अंडरस्टैंड दिस? Next question, same type, one more question I am taking. B and C are heavier than A and D. So what I can do, B and C, B, C are heavier than AD. So my B and C को A and D से ऊपर लिखा हूं, AD इन दोनों से B, C दोनों ज्यादा हेवी है। Now I do not know AD में क्या heavier है, BC में कौन सी heavier, we do not know, right? Don't worry, leave it, आगे बढ़े। C is heavier than A, C is heavier than ये तो ऑलरेडी पता है हमको। कभी कभी ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिखाने के लिए वे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी देता है, सेम चीज दोबारा डिफरेंटली लिख के आपको लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बढ़ाता है, तो हमको कुछ लेना देना नहीं, ऑलरेडी हम जानते हैं इस बात को। C is heavier than A and lighter than B, that means C is lighter than B, that means B C से भी ऊपर चले जाएगी। Are you getting me? E is heavier than B, B से भी E heavier है और ऊपर। Now the question is, who among A B C D E is the heaviest? A B C D E में सबसे ऊपर कौन है? E, पक्का बताया आपको। So who is the heaviest? E is the heaviest. Very simple question. ये नहीं बता हमको AD में कौन सी heavy या कौन सी light है, but अगर out of A B C D E which who is the lightest ये पूछेगा तो एडी में कोई भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते, तब कांट से होगा, लेकिन हेवीएस्ट तो ई है ना। आर यू गेटिंग मी? सी, नो प्रायर नॉलेज, नो फॉर्मूला, नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आई जस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, आई अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, ऑटोमेटिकली आई गेट द क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट यू नीड व्हेन यू डील विद सच क्वेश्चंस इज दैट जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप रीडिंग। अगर एक स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आता है या आप सिंपली आगे बढ़िए, आपको खुद ही पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। दिस इज द स्टाइल। गेटिंग मी? Let's do more practice. Let me take another question. These are all previous questions only from various exams. Like this question is asked in MAT, Management Aptitude Test, like CAT, MAT, different MBA entrance exam questions and all. Somewhere or other, only previous questions I am showing to tell you how simple the exams are. Any competitive exam you can clear with just 20-25 days preparation. ज़्यादा से ज़्यादा. Now you take this. Archana is elder than Suman. So I write. I just follow. I don't have any prior knowledge. Archana is elder than Suman. So I write Archana elder than Suman. So Suman से ऊपर. बीच में कोई और हो सकता है, मुझे नहीं पता. Then Aarti is elder than Archana. Archana से भी मैं आरती अर्चना को डिफरेंशिएट करने को अर्चना को ARC लिखता हूं. इससे भी आरती और ऊपर है. So ART is और ऊपर है. आरती is elder than Archana. But younger than Kusum. That means कुसुम और ऊपर है आरती से भी. Are you getting me? यहां तक मैंने पहुंच गया, यहां तक. नेक्स्ट देखिए, कुसुम इज एल्डर देन सुमन. कुसुम सुमन से ऊपर रहना चाहिए, ऑलरेडी ऊपर है, मुझे ऑलरेडी ये बात बता है, अगेन उनको बोलने की जरूरत नहीं, वे सिर्फ लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बढ़ाने के लिए दोबारा दिया है, मैं जानता हूं इस बात को, सो सिंपली लीव इट. नेक्स्ट, सुमन इज यंगर देन आरती, ये बात भी मैं जानता हूं, सुमन इज यंगर देन आरती, यस. नेक्स्ट, गीता इज द एल्डेस्ट, सो गीता सबसे ऊपर होगा,
Geeta is the eldest. Now first question, who is the youngest? Who is the youngest? Suman is the youngest. Age wise, who is in the middle? चाहे वे क्लियरली नहीं बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डजंट मैटर. मिडिल की बात करेंगे तो कोई भी ऑर्डर में मिडिल एक ही होगा, राइट. एक का मतलब मिडिल मिडिल ही है, इधर ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ. सो आरती इज इन द मिडिल. आर यू गेटिंग मी? हाउ सिली द क्वेश्चंस आर. नो प्रायर नॉलेज, जस्ट स्टिक टू द क्वेश्चन. जैसा बचपन में हम पापा का हाथ पकड़ के चले जाते हैं, हमको नहीं पता कहां लेके जा रहे हैं, हम तो खुशी खुशी से जाते हैं. सेम ये हमको नहीं पता आंसर आएगा नहीं आएगा, आप खुशी खुशी से एक एक लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को फॉलो करिए, जरूर आपको आंसर मिल जाएगी. आर यू गेटिंग मी? Let's take more examples for better practice. I'll take one more question. 5 newly born babies were weighed by the doctor. In her report, she stated that child A is lighter than child B. So I write A below B because A is lighter than B. Child C is lighter than child D. C D से नीचे होना चाहिए, बट D C में यहाँ कोई दिया नहीं. So ये अलग सा कंपैरिजन है, मैं साइड पे लिख के रखूंगा. बिकॉज आई कैन नॉट यूज इट विद बी ए की बात ही नहीं हुआ, यहां अलग सा कंपैरिजन हो रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? चाइल्ड सी इज लाइटर देन डी, सो डी से नीचे सी, ये साइड पे रखिए, आगे बढ़िए. आप इसको दिमाग में रख के परेशान मत हो जाइए, भूल जाइए और आगे पढ़िए. चाइल्ड बी इज लाइटर देन चाइल्ड डी, सो बी डी से नीचे होना चाहिए. दैट मीन्स डी ऑब्वियसली डी से ऊपर चले जाएगा. अगर डी ऊपर चलेगा तो डी से नीचे सी रहेगा, पता नहीं कितना नीचे रहेगा. मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, उस लाइन से नीचे कहीं भी हो सकता है सी, चाहे यहां हो जाए या यहां हो जाए, यहां हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस लाइन से नीचे है. होप यू आर गेटिंग. दैट्स व्हाई मैं यहां फिट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मुझे नहीं पता है, मैं साइड पे लिखा हूं, यहां लिख रहा हूं. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आई एलिमिनेट दिस. होप यू आर गेटिंग मी. नेक्स्ट, सो चाइल्ड बी इज लाइटर देन चाइल्ड डी, बट कंटिन्यू पढ़िए. चाइल्ड बी इज लाइटर देन चाइल्ड डी बट हेवियर देन चाइल्ड ई. दैट मींस ई से बी हेवियर है, सो दैट मींस ई बी से भी नीचे होना चाहिए. बी का एक लाइन लिखा हूं, ई यहां होगा, कहां मुझे नहीं पता, चाहे यहां हो यहां है मुझे नहीं पता, लेकिन इस लाइन से नीचे है. होप यू आर गेटिंग. नेक्स्ट, विच चाइल्ड इज द हेवीएस्ट. ऑब्वियसली सबसे ऊपर तो पक्का बताया आपको डी है. अगर विच चाइल्ड इज हेवीएस्ट की जगह लाइटेस्ट पूछा होता ना, लाइटेस्ट कौन हो सकता है? ये भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते. दैट्स व्हाई ही इज नॉट आस्किंग दैट. अगर पूछेगा तो डेटा इनसफिशिएंट आंसर होगा. सो ही जस्ट आस्किंग हु इज द हेवीएस्ट. चाहे बी के नीचे ई कहां है आपको नहीं पता, डी के नीचे सी कहां है आपको नहीं पता, लेकिन डी द हेवीएस्ट. होप यू आर गेटिंग. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू डू नॉट नो एग्जैक्टली सी कहां आएगा, आप परेशान नहीं होना चाहिए. आपको सिंपली एक लाइन ड्रा करिए, साइड पे रखिए और आगे बढ़िए. आपको क्वेश्चन में ये जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो डेटा इनसफिशिएंट बोलेंगे. परेशान किस बात के होना है. आर यू गेटिंग मी? सो द आंसर हियर इज डी, ऑप्शन बी, दैट इज डी. टेक अनदर एग्जांपल. Geeta is older than her cousin Meena. So Geeta is older than Meena. So Geeta को मैं मीना से ऊपर लिखता हूं. And Meena's brother Bipin is older than Geeta. So Bipin Geeta से भी older है, उससे भी ऊपर लिखा हूं. Now sometimes what he does, now इसी से आंसर है आपका. अब देखिए, now look at option D. Meena is the youngest of the three. है ना, Meena is the youngest of the three. ये आंसर है आपका. ये क्या करता है, इसी से आंसर भी ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, वे छुपाया है डी ऑप्शन बना के. नाउ सीधा पूछेगा ना, नाउ विच इज ट्रू, ये सब नहीं दिया, सीधा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी 2012 में आया है. सेकंड क्वेश्चन यही है ना, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ना, सीता गीता रीता वाला क्वेश्चन याद है आपको, अभी अभी किया, सेम हो जाएगा. इसलिए क्या करता है, कभी कभी आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिखाने के लिए, कुछ लोग होता है 50% ऑफ एस्पिरेंट्स इतना लेंथी क्वेश्चन देख के ही डर जाता है, बिकॉज उनको ऑलरेडी पेपर 2 से डर होता है या पेपर 1 से, कोई भी एग्जाम से डर होता है, वे देख के ही है ना छोड़ देता है, यार इतना लंबा दिया है का मतलब ये डिफिकल्ट होगा. उन लोगों को डराने के लिए वे क्या करता है, बकवास की इंफॉर्मेशन और ऐड करता है. लाइक हियर
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमने फॉलो करेंगे. सो एज वाइज बात करें, ये फॉलो हुआ, आगे भी पढ़ लेते हैं बिकॉज हमको नहीं पता ना वे क्या कर रहे हैं. When Meena and Bipin visit Geeta, they like to play chess. What you do, you take lot of time and you try to keep all this information in your mind. Whether they play chess or caroms, मुझे क्या लेना देना है उससे? That cannot be the important information. वे सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं. That is what you need to identify what paper setter is trying to do. पेपर सेटर इसी से आपका क्वेश्चन तो बना चुका है. नाउ ही इज गिविंग सो मच ऑफ मोर लाइंस, मोर इंफॉर्मेशन टू टेक योर मोर टाइम. आपको परेशान करना चाहता है, लेकिन हमको नहीं बताया ये बात. ऑब्वियसली एग्जाम में ऑलरेडी हम अंडर प्रेशर होंगे, तो ये सब कहां से समझ में आएगा? एक्सपीरियंस होगा तभी समझ में आएगा. मैं ये नहीं बोल रहा था आप पढ़ो ही नहीं, आप पढ़ो लेकिन आराम से पढ़ो, परेशान मत हो जाओ. ओके ठीक है, दे प्ले चेस. तो क्या है, मीना विन्स द गेम मोर ऑफन देन गीता. सो मीना गीता से ज्यादा ऑफनली जीतेगी. सो मीना को मैं गीता से ऊपर लिखा. दैट्स इट, दिस इज ऑल इज गिवन. सो दिस इज अबाउट एज एंड दिस इज अबाउट हु विन. कुछ नहीं दिया. नाउ देखिए, based on the above information, 4 conclusions as given below have been made. Which one of these logically follows from information given below? ऐसा क्वेश्चंस देख के ही थोड़ा एक्सपीरियंस होता है. अगर आप मेरा क्लासेस ठीक से फॉलो करेंगे आपको खुद पता चलेगा. इन जैसा क्वेश्चंस इसलिए दिया होता है आपको टाइम वेस्ट करने के लिए. इसलिए ऐसा क्वेश्चंस में हमेशा लास्ट ऑप्शन करेक्ट रख के ये छुपाता है ऑप्शन को, क्योंकि आप ये भी पढ़ के चेक करेंगे, भी पढ़ के, बिकॉज द pure intention of the paper setter of asking this question is to waste your time, not to trouble you anything else. Now while playing chess with Geeta and Meena, Bipin often loses. यहां बिपिन की बात ही नहीं किया. मीना जीतेगी गीता से, बिपिन जीतेगा हारेगा ये बताया नहीं क्वेश्चन में. सो गलत है. होप यू आर गेटिंग. लेट मी अरेंज. सो ये गलत है. नेक्स्ट, गीता इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 3. नो, Bipin is the oldest, right? Bipin is the oldest. Geeta is not the oldest. So, गलत है. Geeta hates to lose the game. Some people, very few, बिना समझ करके फटाफट देख के ये भाई मार्क कर सकता है. You see, Geeta often loses. ये नहीं बोला Geeta hates or loves. उसकी फीलिंग की बात नहीं किया है. Geeta hates to lose the game. आप थोड़ी देखा उसका चेहरा. So, ये भी गलत है. Meena is the youngest of the 3. Yes, Meena is the youngest of the 3. Are you getting the style of the question? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है. अगर समझ लिया हमने, पेपर सेटर को समझ लिया, दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट एग्जाम. हम समझ नहीं पाया, हम एक बड़ी एग्जाम मान के इसको एक एक लाइन पढ़ के खुद को परेशान कर लिया, तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है. Are you getting me? Otherwise there is no question. Sometimes we type 1 only, but what he does, he is trying to add another concept. One is age concept, second is who wins. 2 concepts mix किया है. कभी कभी क्या होता है, age richer than B but younger to C, ऐसा देगा. एक एज की बात कर रहा है, एक रिच और पुअर की बात कर रहा है, तो 2 अलग सा कंपैरिजंस बनाएंगे हम. गेटिंग मी? क्वेश्चन आपको बाद में आंसर खुद ही मिल जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई दिक्कत है, ये बहुत आसान है, एक बार रिवाइंड करके देखिए, खुद समझ में आ जाएगा. नाउ लेट मी मूव टू सेकंड टाइप. दिस वाज आस्क्ड इन 2013 पेपर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपके एग्जाम में तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है. 4 friends ABCD distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D, D gets 3 more than B. Who gets the smallest amount? इतना आसान क्वेश्चन है, बिकॉज आपके एक्चुअल एग्जाम में तो बहुत आसान आता है. मुझे कुछ बता भी नहीं होता ना, तब भी मुझे आंसर मिलेगी. लाइक A gets 1 less than B. That means क्वेश्चन क्या है, who is getting the smallest amount? A is getting 1 less than B. That means B cannot be the smallest. Because B से ये छोटा एक कम आ रहा है. That means B cannot get the smallest amount. Next, C gets 5 more than D. That means C is not getting the smallest amount. D gets 3 more than B. That means D is not getting the smallest amount. So A is getting the smallest amount. Even मुझे कुछ भी नहीं पता है, तब भी आंसर मिल जाएगी. इतना आसानी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है. Are you getting me? But I just don't want to answer this way. अगर डिफिकल्ट दिया भी होगा तो कैसा आंसर करना, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको समझाना चाहता हूं. सो व्हाट आई डू व्हेन सच क्वेश्चंस कम,
A gets 1 less than B. I write, actually what I should write, A is getting 1 less than B. So I need to write A equal to B minus 1. बट मुझे माइनस से प्लस ज्यादा अच्छा लगते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग A इक्वल टू B minus 1, I write B equal to A plus 1. So A is getting 1 less than B, that means B is getting 1 more than A. मैं सारे प्लस टर्म्स में लिखता हूं. C gets 5 more than D. So can we write C equal to D plus 5? Next, D gets 3 more than B. So we can write D equal to B plus 3. ये kind of standard type of question है. There are 4 variables A, B, C, D. जब 4 variables होता है ना, वे 3 statements देगा. 1, 2, 3. So you will get 3 things. Now this is very simple question. Who is getting the smallest amount? Who is getting the smallest amount? Obviously देखिए, B is not getting the smallest amount because B equal to A plus 1. Are you getting me? C is not getting the smallest amount because A D से किसी से ज्यादा है. D is also not getting smallest, A भी किसी से ज्यादा है. तो obviously who is getting the smallest? A is getting the smallest. This is this style. लेकिन इतना आसानी से ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो मैं ये सब लिखने का क्यों बोला हूं. नाउ देखिए, ऐसा नहीं हमेशा स्मॉलेस्ट ही पूछेगा. He might ask who gets the largest or who gets the second smallest. Anything can be asked. Now what you do, once you get that A is getting the smallest, मैं सबको A टर्म्स में लिखता हूं. B is already in A term. C को क्या लिखेंगे? D को क्या लिखेंगे? B plus 3. B means what? A plus 1. So A plus 1 plus 3 means A plus 4. Hope you are getting me. B के जगह मैंने A plus 1 रख रहा हूं. So A plus 1 plus 3, A plus 4. D plus 5 क्या होगा? D means A plus 4. ये रखेंगे यहाँ A plus 4 plus 5. That means A plus 9. You understand this? Now A equal to A, B equal to A plus 1, C equal to A plus 9, D equal to A plus 4. Now any question can be answered. Even there could be a question like which of the following statement is true? Statement A, the difference between B and C, are you getting what I mean? The difference between B and C is how much? 8 difference. Are you getting me? And the difference between A and D difference is 4 difference. So the difference between B and C is twice to that of the difference between A and D. ऐसा भी statement दे सकता है, सही होगा. Like that, any question can be asked, and all such questions can be answered if you follow this. That's why I am giving this. But ये question इतना deep में नहीं पूछा है, आपको सीधा ऑप्शन से ही ये तीनों एलिमिनेट होकर आंसर मिल जाएगी. But otherwise, this is the standard way. Hope you understand this. Now I will take a difficult question to make you understand this, what I am trying to say. Now let me take this question. There are 6 persons A, B, C, D, E, F. A has 3 items more than C, something is given. Now I intentionally made it difficult. आज की टाइम पे IAS एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं. Because it became so easy, he is not asking even this level of questions. Who of the following had the second highest number of items? Second highest number of items किसके पास है? अगर highest या lowest पूछा होता है ना, मे बी ऑप्शन से आपको आंसर मिल सकता, I mean you can eliminate. But second highest, are you getting? So आपको बनाना पड़ेगा. Now you see, since there are 6 people, he definitely would have given 5 statements. Yes, he gave. Now first statement, A has 3 items more than C. So using this I write A equal to C plus 3. Hope you understand this. इतना basic statement आपको समझ में आता है ना. 3 more than C means C plus 3. D has 4 less than B. That means D equal to B minus 4. But एक plus में एक minus में अच्छा नहीं लगता है, because you cannot understand. So instead of writing D has 4 less than B, I write B has 4 more than D. Next, E has 6 less than F. That means F has 6 more than E. इसमें कोई दिक्कत है तो आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान बात कर रहा हूं मैं. Next, C has 2 items more than E. So C equal to E plus 2. F has 3 items more than D. That means F equal to D plus 3. Now बताइए, which of the out of these 6 A, B, C, D, E, F, which has the smallest? Which is the smallest? Now ये तो smallest नहीं होगा because it is something plus 3.
B cannot be the smallest, F cannot be, एक्चुअली 5 एलिमिनेट होना चाहिए आपको इन पांचों, ये 5 एलिमिनेट होगा तो जो बचेगा वे होना चाहिए, बट ही मेड इट डिफिकल्ट दिस टाइम, दैट्स व्हाई F 2 बार आया है, दैट्स व्हाई ये एलिमिनेट होगा, A cannot be the smallest, B cannot be the smallest, F cannot be the smallest, C cannot be the smallest, so D and E 2 बचा है, बिकॉज एक ही चीज 2 बार दिया है F instead of giving another variable. So what we do, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे. What is given? F equal to E plus 6. आपके लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, देख के बोल सकते हैं. That equal to D plus 3. Hope you understand. F equal to E plus 6. The same equal to D plus 3. So इससे क्या होगा इन दोनों से? D equal to, मैं अगेन ऐसा लिखूंगा जो बड़ा को D equal to E plus 3 इधर जाएगा. तो hope you understand this. That means इसको निकाल दे. D equal to E plus 3. That means D also cannot be the smallest. So बचा क्या है? E. So E the smallest. E equal to E. This is the smallest. You understand? But the question is, he is not asking what is smallest. अगर what is smallest होगा तो मुझे पता चल गया E the smallest. But the question is second highest. ये पूछे या कुछ और पूछे, अब मैं क्या करता हूं, सबको E का टर्म्स में लिखता हूं मैं, because I know that E is the smallest. सबको छोटा की टर्म्स में लिखेंगे. Are you getting me? E already in terms of E, D is already in terms of E, C is also in terms of E, F is also in terms of E. Now B equal to D plus 4. D means E plus 3. So E plus 3 plus 4, that equal to E plus 7. Are you getting this? Next A equal to C plus 3. C means E plus 2. E plus 2 plus 3 means E plus 5. नाउ सारे E की टर्म्स में है, अब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड हाईएस्ट, बताइए सबसे ज्यादा E plus 7, दिस इज द हाईएस्ट. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. E plus 7 is the highest, then E plus 6 is the second highest, then E plus 5, then E plus 3, then E plus 2, then E, है ना? So second highest is E plus 6. That means F. You can answer. You understand this? Now you see, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, for example, what is the difference between A and B? The difference is E plus 5 and E plus 7. The difference is 2. Now you can say easily. Similarly, what is the difference between F and C? E plus 6 and E plus 2, 4. So he might give a statement, the difference between F and C is twice to that of the difference between A and B. Yes, correct है? 3 गलत ऑप्शंस दिया, एक सही स्टेटमेंट दिया. Which of the following statement is correct? He can ask anything after this. So what we are trying to do, सबको मिनिमम फाइंड आउट करेंगे पहले, सबको मिनिमम की टर्म्स में लिखेंगे, then we can answer any of the question. Are you getting? This is standard. But इतना लेवल तक आजकल नहीं जा रहा है, तो हम इतना करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जनरली वे हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट पूछेगा, सीधा एक एक पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा. Because of your level, your का मतलब your exam level, it is very low. Hope you understand this type. Take another question of same type. A blacksmith has 5 iron articles A, B, C, D, E, each having a different weight. A weighs twice as much as B. Same question, but in this case, instead of saying how much more or how much less, he is saying how many times. Doesn't matter. Same style में लिखेंगे. A weighs twice of B, so I write 2B. A equal to 2 times of B. B weighs 4.5 times of C, so B equal to 4.5 times of C. I'm just following. Next, C weighs half of D. Actually आपको लिखना होगा C equal to half D. But I don't write this. जैसा हम माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट किया पिछले एग्जाम्पल में, सेम एक से कम है, इसका मतलब है C छोटा है. छोटा को हम बड़े टर्म्स में लिखने से वजह है, बड़े को हम छोटे टर्म्स में लिखेंगे. सो इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ राइटिंग C इक्वल टू हाफ D, आई राइट D इक्वल टू 2C. इंस्टेड ऑफ सेइंग C इज हाफ ऑफ D, आई से D इज डबल ऑफ C. Similarly, D weighs half of E. So instead of writing D equal to half of E, I write E equal to twice of D. Hope you understand. जैसा हम प्लस में लिखा है पिछले एग्जांपल में, वैसा ही यहां मैं बड़े को छोटी टर्म्स में लिख रहा हूं. Now A cannot be the smallest because A is twice of something. B cannot be the smallest because it is 4.5 times of something.
D cannot be smallest because it is twice of something, E cannot be smallest because it is twice of something. तो बचा क्या? C. So C the smallest. Now but he is not asking, yes he is asking the same, which of the following is the lightest in weight. So the answer here is C. Getting me? अगर heaviest पूछेगा तो क्या करेंगे? सबको C terms में लिखिए. Already it is in C term, it is in C term. Now 2B, B means 4.5 C, 4.5 C into 2 9C, and E equal to 2D, D means 2C, 2 times 2C is 4C. अब बताइए 9C सबसे बड़ा है, then 4.5C, then 4C, then 2C, then C. He might ask you if they are arranged in decreasing order of their weight, which is in the middle or which is second. Anything can be asked, doesn't matter. हंसते हंसते आंसर करेंगे. Are you getting me? So in such questions, when he clearly mention it is how much more or how many times, then हम ऐसा लिखेंगे, then सबसे छोटा आइडेंटिफाई करेंगे, सबको छोटी की टर्म्स में लिखेंगे, then since all are in one term, then it is very easy for you to compare. This is type 2. Hope you understand. So now we'll move on to type 3, last type. This kind of questions आज के टाइम पे आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज आपका लेवल इतना नहीं है, आपका एग्जाम का लेवल, बट वी विल सी इट. PQR S&T reside in a 5-storied building, ground plus 4 stories है, and each one of them reside on a separate floor. Further, T does not reside on the topmost floor. अगर ये दिया होता है तो T reside on the topmost floor, we can use it. T does not reside on the topmost floor, so we do not know कहाँ होगा. So कहीं भी हो सकता है, leave it. अगर समझ में नहीं आता है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, don't waste your time. Second, Q does not reside on the ground floor. Q does not reside on the ground floor means कहीं भी हो सकता है ऊपर, हम नहीं समझ सकते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए. S reside 1 story above P and 1 story below R. आप क्या करते हैं, ये यूज कर सकते हैं. S reside 1 story above P, P से exactly 1 story ऊपर S रहता है, and 1 story below R. So R से just 1 story below होता है. So now this is used. ये समझ में आया. That means ये तीनों कट्टे होंगे, R के नीचे S, S के नीचे P होंगे. Now T does not reside on the topmost floor. S does not reside, sorry, Q does not reside on the ground floor. Who reside on the ground floor? आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी लग रहा है, अब क्या करते हैं मोस्ट ऑफ यू 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद T does not reside on the top floor, so T ground floor पे होगा. Q does not reside on the ground floor, so Q top floor में होगा. ये करेगा, then who reside on the ground floor? T. फटाफट मार्क करेगा, समझ लेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, लेकिन ये गलत है. You will understand why. Let me explain. Hope you understand. If you do this way, it is wrong. Let me arrange. What you need to do in such questions, पहले स्टेटमेंट हम इसको यूज कर रहे हैं, हम ये तो है S reside 1 story above P and 1 story below R. So ये तीनों तो कट्टे हैं. Now out of these 5, 1 2 3 4 5, ये नहीं बताया ये यहां रहेंगे, सो दैट T यहां नहीं रह सकते तो यहां रहेगा, Q यहां नहीं रह सकते तो यहां रहेगा. ये तो थोड़ी बताया, सिर्फ इतना बताया ये तीनों कट्टे हैं. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे केसेस बनाना होगा. केसेस क्या है? आई अज्यूम ये तीनों सबसे ऊपर रहेंगे, सो नीचे 2 खाली है. सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड ये ऐसा होगा, नीचे एक ऊपर एक खाली है, या और नीचे लेके आओ, ऐसा हो सकता है ऊपर दोनों खाली है. दीज आर ओनली 3 केसेस. You have to make, with the given information, you have to make all possible cases. This is the type of question. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपका लेवल पे तो आएगा नहीं, ये कुछ मैनेजमेंट एग्जाम्स कहीं और पूछ सकता है, बट वेरी इजी, थोड़ा से समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है. सो 3 केसेस हुआ. नाउ देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, T does not reside on the top floor. अगर इस केस की बात करो, T does not reside on the top floor, तो ये कहीं भी हो सकता है, एंड Q does not reside on the ground floor, so Q यहां नहीं हो सकता है, तो Q यहां होगा, T यहां होगा. पॉसिबल. दिस इज वन केस. सेकंड केस में क्या है? T does not reside on the top floor, so T obviously यहां आएगा, and Q does not reside on the ground floor, so Q यहां पहुंचेगा. ये भी पॉसिबल. नेक्स्ट थर्ड केस में T does not reside on the top floor, so T यहां आएगा, Q does not reside on the ground floor, so obviously
Q कैन बी, एक ही बचा है. सो ऑल आर पॉसिबल, ऑल 3 केसेस आर पॉसिबल. कभी कभी क्या होता है, एक दो केसेस पॉसिबल नहीं रहता है, उसको एलिमिनेट हो जाता है. अभी तो तीनों पॉसिबल है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हु रिसाइड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर में क्या, अगर ये केस सही होता है तो T है, अगर ये केस होता है तो T है, ये केस होता है तो P है. हमको नहीं बताना कि ये कौन सी केस है, तीनों केसेस तो चल रहा है, कोई भी केस एलिमिनेट नहीं हुआ है. तो आंसर T भी हो सकता है और P भी हो सकता है. आर यू गेटिंग मी? सो द आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट. वी कैन नॉट से, आप पक्का ये नहीं बोल सकते ये तीनों केसेस एग्जिस्ट होता है तो आंसर P भी हो सकता है, T भी हो सकता है. सो वी कैन नॉट neither go for T nor go for P because we do not know, दोनों भी हो सकता है. तो यहां आंसर है डेटा इनसफिशिएंट. अगर ये दिया होता है P और T, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया होता है तो देन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? अगर एक और स्टेटमेंट दिया होता है लाइक R is not on the top floor, or let us say not R, I want to eliminate this case. I say that P is not on the ground floor. Suppose one more statement, or simply S is not on the first floor, because P is not on the ground floor, because ये तो सीधा क्वेश्चन ही हो गया. S is not on the first floor. तो S is not on the first floor means this case is eliminated. So this whole case is eliminated. Now दोनों cases में T ही ground floor में है. Now I can go for T answer. Are you getting me? But here in this question, all 3 cases, no case is getting eliminated. Who is on the ground floor? It could be either T or P. I do not know. That's why I am going for data insufficient. नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक दो और एग्जांपल मैं दिखाऊंगा. अगर नहीं भी समझ में आया डोंट टेक एनी टेंशन, बिकॉज दिस इज ऑफ हाई लेवल, आपकी एग्जाम से ऊपर है. बिकॉज आपके एग्जाम में पूछता था एक टाइम पे, आजकल तो ये पेपर सेटर इतना तक पहुंच नहीं पा रहा है. गॉट इट? टेक दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 1997. 7 persons PQR, STU and we participate in and finish all the events of a swimming series of swimming races. There are no ties at the finish of any of the event. V always finishes somewhere ahead of P. So V always P से ऊपर होगा and P always finishes somewhere ahead of Q. P हमेशा Q से ऊपर होगा. इतना तो दिया है यहां तक. Now दिया है either R finishes first and T finishes last. So R first and T last होगा, either this case or ये तो है VPQ. एग्जैक्टली नहीं, बीच में कोई और भी हो सकता है, हमको नहीं पता. गेटिंग मी? और S finishes first and U or Q finishes last. एक केस ऐसा जिम करेंगे Q finishes last. मैं एक और केस बनाता हूं VPQ, S finishes first and U finishes last. अगेन 3 केसेस से वे खुद बता रहा है. Are you getting me? I just made all 3 cases. अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहां तक कर रहा हूं, एक बार देख के पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा समझ लीजिए. Now if in a particular race V finished 5th, ये देखना V 5th फिनिश तीनों में कर सकता है या कोई केस एलिमिनेट होगा, आपको देखना है. सपोज यहां 5th होता है टोटल 7 पर्सन्स में, ये 6th होगा, ये 7th होगा, ये 8th होगा. इतना लोग तो है ही नहीं. सो 7 में ये 5th होगा तो उसके बाद सिर्फ 2 लोग बच सकता है, 3 लोग नहीं बच सकता है. दैट मींस इफ V finishes 5th, दैट मींस दिस केस इज एलिमिनेटेड. आर यू गेटिंग? यहां हो सकता है 5th होगा तो ये 6th 7th होगा, यहां V 5th होगा तो ये 6th 7th 8 पीपल तो है नहीं, तो ये केस भी एलिमिनेटेड. सो वे खुद ही बता रहा है V अगर 5th फिनिश करना है, ये दोनों केसेस एलिमिनेटेड है, इसका मतलब ओनली एक ही केस बचा है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू? स्टेटमेंट ये S finishes first, बस एक ही केस बचा है, इस केस में S is finishing first, दैट मींस सही है. सो आपका आंसर है. बहुत ही सिली कंसेप्ट है. वे खुद ही 3-4 केसेस, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा केसेस भी नहीं बनाएगा, बिकॉज और केसेस आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. 3 केसेस तक जाएगा, देन वे खुद ही 1-2 केसेस को गलत बनवाएगा, देन रिमेनिंग से आपको क्वेश्चन पूछेगा. अगर गलत नहीं बनवाएगा तो डेटा इनसफिशिएंट या जो भी देखेंगे हम, जो भी अगर एग्जैक्ट आंसर बन रहा है तो आंसर करेंगे, नहीं बन रहा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड और डेटा इनसफिशिएंट दिया होगा. दिस इज द स्टाइल ऑफ थर्ड टाइप. बट दिस टाइप आप इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, वे आज का टाइम पे आने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
लोग इतना आसानी क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी परेशान और स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इतना तक पहुंचेगा नहीं पेपर सेटर. यू अंडरस्टैंड दिस? Let's take one more question, last question, which was asked in SNAP paper, one of the MBA entrance exam. 7 students, Priya, same question actually, with थोड़ा modify किया है. 7 students, Priya, अंकित, रमन, सुनील. आप क्या करते हैं, सारे नेम्स पेपर पे लिख के ये 30 सेकंड्स वेस्ट करते हैं. उसका नाम क्या है तो हमको क्या लेना देना है. 7 स्टूडेंट्स है, कोई भी नेम है, आप फटाफट करिए. दे टेक ए सीरीज ऑफ टेस्ट, नो 2 students get similar marks. Vicky always scores more than Priya, so I write Vicky always score more than Priya. Priya always score more than Ankit, so Priya always score more than Ankit. Each time either Raman score the highest, and Tony gets the least, or means one more case. Sunil scores the highest, ये तो रहेगा, VP ये तो रहेगा, Vicky, Priya and Ankit. Sunil scores the highest and Deepak or Ankit scores the least. ये यही assume करता हूँ Ankit least, एक assume करता हूँ मैं VPA Deepak lowest. Just the same question, it is replica of the previous question. वहां स्विमिंग हटा के यहाँ टेस्ट की बनाया, नाम चेंज किया. इनफैक्ट उसी क्वेश्चन से कॉपी करके बनाया. होप यू अंडरस्टैंड. ऐसा बहुत एग्जाम में होता है. दसवें है ना, अगर आप 4-5 एग्जाम सारे एग्जाम्स का पेपर देखा होता है तब आपको समझ में आएगा 80% ऑफ क्वेश्चन सेम है. बिकॉज इतना पेपर्स, इतना क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है, पेपर सेटर नया क्यों बनाएगा, इतना दिमाग क्यों यूज करेगा जहां मिल रहा है, इतना मॉडिफाई करेगा तो सो दैट कोई पहचान नहीं पाएगा. वैसा भी स्नैप पेपर देख के कोई आएगा वे थोड़ी सोचेगा. आर यू गेटिंग मी? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ सुनील इज रैंक्ड 6th एंड अंकित इज रैंक्ड 5th, हम चेक करेंगे कौन सी केस में पॉसिबल हो सकता है. सुनील इज रैंक्ड 6th, सुनील कैसा है, यहां बोल रहा है कि सुनील इज टॉप, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. तो सुनील तो टॉप, अगर ये केस होता है सुनील तो 6th आ ही नहीं सकते, तो दोनों केस एलिमिनेट हो गए, एक ही केस बचा है आपके लिए. नाउ अंकित इज 5th, ये बोल रहा है कि ये 5th है, हो सकता है कोई और यहां है. ओके, एक ही केस है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? विक्की इज रैंक्ड 1st or 4th. विक्की, अब देखिए विक्की तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज रमन इज द फर्स्ट, एंड 4th भी नहीं हो सकता बिकॉज 4th तो प्रिया को होना पड़ेगा. बिकॉज अगर अंकित 5th है, ये 4th नहीं हो सकता, बीच में कोई और है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लेवल पे, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर टाइप 3 समझ में नहीं आया तो भी डोंट वरी एट ऑल, सिंपली इग्नोर. टाइप 1 आपको ज्यादा आने वाला है, उसको समझ लीजिए. सो ये गलत है. सेकंड, रमन इज रैंक्ड 2nd or 3rd. वाई? रमन इज फर्स्ट है, 2nd or 3rd क्यों होगा? थर्ड, टोनी इज रैंक्ड 4th or 5th. टोनी 5th के नीचे है, सॉरी टोनी तो लास्ट है. हाउ ही कैन बी 4th or 5th? गलत है, ना 4th हो सकता है ना 5th हो सकता है. दीपक इज रैंक्ड 3rd or 4th. दीपक की बात ही नहीं हुआ यहां, दीपक बीच में कहीं भी आ सकता है. सो ही कैन बी 3rd or 4th हो सकता है. अगर ये फर्स्ट है, ओके, ये 5th है, बीच में दीपक कहीं भी हो सकता है. यस, दीपक कैन बी 3rd or 4th, देयर इज ए चांस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. वेरी वेरी इजी टॉपिक है, आपको थोड़ा से समझ लीजिए, कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है, फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से आंसर आएगा. आपको इतना लेवल भी नहीं आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. सो जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप स्किप नहीं करना, फटाफट अटेम्प्ट करके सही आंसर करिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज अबाउट द कंपैरिजन टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.